Hello everyone, welcome to J Science. This is Jitesh Prabhu, and we are into the last part of the chapter called as gravitation. And the next topic in this lecture which we have to study is named as free fall. Free fall. Okay. So let's understand that what the free fall is. बहुत simple सा topic है. And we'll quickly do this. Okay, we'll not invest much of time as it is very much simple. What is free fall? Now, when you are holding any object, like I'm holding this marker right now, so there are two types of forces acting on this marker, right? There are different kinds of forces acting on it, but the current and major two types of forces acting on it that we have to consider. Okay. One force of the earth which is trying to pull this marker down towards itself. How do I know? What if I remove my hand? अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से हटा दूँ तो इस मार्कर के साथ क्या होने वाला है? ये नीचे जाने वाला है. ऊपर क्यों नहीं? अब नीचे क्यों जा रहा है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट? मतलब can I say that when I'm holding this marker like this, now this marker is eagerly waiting me to leave my hand, to remove my hand so that it can fall down, right? Because there is continuous pull from the earth, right? Yes, sir, right. But this isn't falling now. Why? Because my hands are applying the force in the opposite direction to the direction to which this marker wants to fall. Meaning what? हमारा marker नीचे की तरफ गिरना चाहता है. The gravity is trying to attract it downward, but we are applying the force opposite to that gravity. मतलब opposite. मैंने हाथ ऊपर की तरफ रखा है ना, हाथ ऐसे रखा है और मार्कर ऐसा स्टेडी है क्या? ऐसा नहीं है ना, हाथ ऐसे रखा है, राइट? इसका मतलब the gravity is pulling this marker downward and I am holding this marker. I am applying a force in a direction opposite to that gravity to hold this marker. इसका मतलब जो भी चीजें हम होल्ड करते हैं, we are holding those against gravity by applying force in the upward direction. है ना, हमने upward direction में force apply किया हुआ है, इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पा रहे हैं, राइट? ओके. सो जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर मैं अपना हाथ हटा दूँ तो दिस मार्कर इज गोइंग टू फॉल डाउन, राइट? अब इस पोजीशन पे, इस मार्कर पे दो तरह के फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं. दो तरह के फोर्स. वन इज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ and second force opposite to gravity. Force opposite to gravity मतलब two kinds of forces. One is pulling this marker down and I am applying force with the help of my hand which is holding this marker against gravity, right? As soon as I remove my hand, this marker is going to fall down. Marker is waiting me to remove my hand so that it can fall down. Okay. So now let's imagine a case where I have removed my hand. अगर मैं अपने हाथ को हटा दूँ तो obviously what is going to happen is marker is going to fall down. जब मैं अपने हाथ को हटा दूंगा तब समझो कि अब मैंने हाथ को हटा दिया. जिस मोमेंट पे हमने अपने हाथ को हटा दिया उस मोमेंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमने एक फोर्स भी हटा दिया. इन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स ऐसा था which was because of my hand, right? Which was that?
The second one, this one, this one. This force, it was acting on this marker. This was because of my hand. Now I have removed my hand, right? That means now this force has been removed. Now there is only one kind of force acting on this marker. Which force? Gravity of the earth. Gravity of the earth. Or under the influence of the gravity of the earth, now there is no force which can hold this marker against the gravity. Therefore, under the influence of this gravity, this marker is going to fall down. And this falling down of an object under the influence of gravity is known as free fall. So what is free fall? Objects falling under the influence of gravity only. The type of fall in which your object is falling, no matter which is the object, which is falling only under the influence of gravity. Now some intelligent student might think that कि जब ये मार्कर नीचे की तरफ गिरेगा, so there is air in our atmosphere में हमारे air है, which will try to reduce its velocity, which will resist this marker to fall down. एक केस इमेजिन करते हैं, राइट? हमारे रूम में, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में एयर है, एटमॉस्फेयर है. तो उस एटमॉस्फेयर में जब ये मार्कर गिरेगा तो वो जो एयर है वो क्या करेगा? इसको रेजिस्ट करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स. बायंट फोर्स इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 8th स्टैंडर्ड. ठीक है, अभी उसके बारे में मत सोचो. दिस एयर विल रेजिस्ट दिस मार्कर and will increase its time which it can take to fall down from this position to the earth. मतलब क्या? दो एग्जाम्पल. हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली. मतलब ऐसा फॉल डाउन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, राइट? बट जब ये मार्कर नीचे की तरफ गिरने लगा तो नीचे जाते वक्त इट इज फेसिंग द एयर. आपने देखा होगा जब हम लोग स्काई डाइविंग करते हैं, या फिर स्काई डाइविंग के केस में आपने देखा रहेगा, जब भी कोई ह्यूमन या फिर कुछ भी चीज़ जब एक हाइट से गिरती है तो हमारे बाल, हम लोग वो एयर फील करते हैं. फील करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या? वो एयर हमें रेजिस्ट कर रहा है. वो एयर क्या कर रहा है? हमें रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो वो जो हमारा फॉल है, that will not be counted as free fall. Are you getting my point? इसका मतलब ये हुआ कि in this practical world there is no free fall, क्योंकि air is everywhere. अगर air हर जगह पे है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि the object falling on the earth is doing free fall? It is not doing free fall because it is facing a resistance of the air present in the atmosphere. So when the actual free fall is possible, the actual free fall is only possible जब हम एक रूम में वैक्यूम क्रिएट करें. क्या क्रिएट करें? वैक्यूम क्रिएट करें. वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एयर. मतलब मान लो कि अब फिलहाल जिस रूम में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एयर है ही नहीं, राइट? और जब मैं इस मार्कर को नीचे गिराऊंगा वो फॉल फ्री फॉल में काउंट कर सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्री फॉल. नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स. अभी ये मार्कर है, राइट? तो अभी इसके पास एक वेलोसिटी है विच इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी. उसका वैल्यू क्या होगा? अभी मार्कर कहीं पे घूम रहा है क्या? मूव हो रहा है? नहीं. और इनिशियल वेलोसिटी तो है, कितनी है? 0. कितनी है? 0. As soon
I remove my finger from this will start falling down, isn't it? Yes. जैसे जैसे ये नीचे की तरफ गिरते जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते जाएगी. ओके, सो विल राइट समथिंग. ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन, object falling down and object thrown upward. बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे इसको समझ नहीं पाते और न्यूमेरिकल में फिर बेड़ा गर्द कर देते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन. दिस इज द ऑब्जेक्ट एट हाइट. नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0. ये तो आपको दिख रहा है, मूव हो ही नहीं रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई. इनिशियल वेलोसिटी को हम एक सिंबल देते हैं विच इज u, राइट. हम तो बोल रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0. और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा वैसे वैसे कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी चेंज होते जाएगी. इनफैक्ट द वेलोसिटी विल कंटिन्यूसली इंक्रीज, राइट. और जब ये अर्थ पे जमीन पर पहुंचेगा तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी. हमें कैसे पता मैक्सिमम होगी? ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है. जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. अब कम तो हो नहीं रही है, ये बढ़ते ही जा रही है. अनलेस जब तक ये जमीन के कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा मार्कर, तब तक इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होने वाली है. तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जमीन पे जस्ट पहुंचा तब, वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. अब उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है हाइट पर ना, हम लोगों ने कितने हाइट से उसको रिलीज किया है. हमें फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू नहीं पता. जैसे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया, दैट इज 0. हमें फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू नहीं पता, बट हमें एक ही चीज पता है, फाइनल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. And final velocity is denoted by the symbol v. Final velocity is maximum. Right? Okay. Third point. क्यों इसका velocity continuously increase होते जा रहा है? Because this marker is going to fall down in the direction of the gravity of the earth. In the direction the earth want this to fall. इसके लिए इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जा रहा है. हम लोगों ने एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जा रहा है. तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरते जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिरेगा, उस केस में आप हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव लोगे. ओके, सो वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट falling down, object thrown upward, right. हमने क्या डिस्कस किया? इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0, फाइनल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी मैक्सिमम, और जो भी g का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा. Now what in case of object thrown upward? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो, आप इमेजिन करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपना क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो आपका फेंका हुआ क्रिकेट बॉल कितने हाइट पर जाता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको दी है. आपने जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया होगा, उतनी ज़्यादा वो ऊपर जा सकता है, राइट. अब समझो इस मार्कर को मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है. ओके, वापस गिर, इस मार्कर को मैंने ऊपर थ्रो किया. जैसे इस मार्कर को मैंने रिलीज किया अपने हाथों से, उस मोमेंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, हाथों से रिलीज किया तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई.
जैसे मैंने इस मार्कर को रिलीज किया, अब इसकी जो वेलोसिटी है विच इज इनिशियल वेलोसिटी, ये मैक्सिमम थी। कितनी थी वो नहीं पता, पर कितनी थी, मैक्सिमम थी, ये हम लोग बोल सकते हैं। जैसे जैसे ये मार्कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, क्या होने लगा? अब आप एक क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो क्या होता है, बोलो? वेलोसिटी डिक्रीज होती है, राइट? तो जिस वक्त हमने इसको रिलीज किया उस वक्त वेलोसिटी वाज मैक्सिमम, और जैसे जैसे ये मार्कर ऐसे ऊपर की तरफ जाते गया इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते गई और एक पॉइंट आया जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जहाँ पे ये वेलोसिटी मतलब मार्कर आके रुक गया, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी, राइट? फाइनल वेलोसिटी अब कितनी हो गई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? मैक्सिमम। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ये मार्कर या फिर वो जो क्रिकेट बॉल आपने फेंका है उस वजह से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है। अब कितनी वैल्यू होती है बेटा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मालूम पड़ेगा, तो मैक्सिमम होती है, समझ के लो। फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो कंसिडर करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सोचो, मार्कर ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन को बताने के लिए, और दूसरी बात, इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रही है। तो इस केस में हम जो जी का साइन है वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज सेम। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इज ऑलवेज सेम। अगर यहाँ पे +5 है तो इस केस में सिर्फ -5 हो जाए बस, ठीक है? मैग्नीट्यूड इज सेम बट साइन चेंजेस। पॉजिटिव मतलब किसके लिए? ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन, एंड नेगेटिव किसके लिए? ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। Now, based on this, you can make some changes accordingly in Newton's kinematical equations, which you have already studied in your 9th standard. We'll see what kind of changes we can make in that formula, in those formulas. We have total 3 formula. कौन से जल्दी से बोलो, रिवाइज करो। रिवाइज मतलब याद करो। So the first formula was V is equal to U plus AT. Second formula was S is equal to UT plus half AT square. And third formula was V square is equal to U square plus 2AS. Right? ये अपने 9th standard में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। Where V is what? Final velocity. U is what? Initial velocity. A is what? Acceleration. And T is obviously what? Time. T is what? Right? वैसे यहाँ पर S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब तो फैमिलियर टर्म्स है। डिस्प्लेसमेंट। अब समझो कि ये मार्कर है, इसको मैंने रिलीज किया कि यहाँ से नीचे गया, जमीन पे गिरा। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना हाइट ट्रैवल किया? जितने ऊपर से मैंने इसको फेंका, यहाँ से लेके सिर्फ जमीन तक का हाइट मेजर करो, यही इतना हाइट से ये नीचे गिरा, राइट? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मार्कर यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस हुआ। तो हम लोग फॉर्मूला में भी यहाँ पर जब कभी भी हाइट की बात आएगी तो यू विल फाइंड कि वहां पे एस लिखा है। क्या लिखा है? एस मतलब इन जनरल साइंस में होता है डिस्प्लेसमेंट। बट बेटा अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने कोई बॉल एक हाइट से, यहाँ पर ग्राउंड है, एक हाइट से अगर रिलीज किया है तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, और यही इसकी हाइट है, राइट? सो हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए हम लोग हाइट का सिंबल देते हैं एस। इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस है।
क्या कुछ चेंजेस है? ये नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में आप जो एक्सेलरेशन की बात करते हो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक ही जगह पे क्या लिखना होता है? जी। तो ठीक है, चलो इसके लिए ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन के लिए हम लोग चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस होंगे? फर्स्ट फॉर्मूला में v मैक्सिमम है, मतलब हमें वैल्यू नहीं पता, राइट। u कितना है? 0। फॉलिंग डाउन है, एक ही जगह पे क्या लिखना है? g, इसका साइन है पॉजिटिव, और t को तो वैसे लिख रखना है। आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू g2। मिला एक फॉर्मूला? ओके। Saving this. So we may change for second one. Second formula was S is equal to ut plus half at square. We are making changes in the formula in case of object falling down. S क्या है? Height traveled by the object. U initial velocity is 0 plus half, एक ही जगह पे क्या लिखना है? G, बट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? हाफ G, राइट। What about third formula? B square is equal to U square plus 2AS, है ना? नीचे तो U का वैल्यू कितना है? 0। तो लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। डायरेक्टली 2 लिखता हूँ। एक ही जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? G S। आप नोटिस करोगे आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे फ्री फॉल का टॉपिक है वहाँ पर नीचे बॉक्स बनाकर यही तीनों फॉर्मूले दिए गए आपको, 1 2 3। जैसे हमने ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन के लिए चेंजेस किए हैं, वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड के लिए भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। बट हम लोग न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि आपको याद नहीं रखना, आपको याद सिर्फ ये तीनों फॉर्मूलेज रखना। बाय हार्ट दिस 3 formulas and rest of the things will be easy। हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। This will be first time that you will get the numericals solved in on YouTube, right? Uh, I don't want to blame, but everyone is branding their name and not teaching the topic up to the mark. But don't worry, uh, we don't have to do anything with them. Let them do their thing and we'll do our। तो हम लोग ये फॉर्मूलाज अब बाय हार्ट कर लो और हम लोग फिर बेस्ड ऑन दिस हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So we are only left with the 2 topics from this chapter, which is gravitational potential energy and escape velocity. So let's see first what is gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Okay. What is potential energy? In simple terms, आप ये बोल सकते हो कि potential energy is the energy because of the state of any substance or any object। स्टेट या फिर पोजीशन बोल सकते हो, स्टेट या फिर पोजीशन बोल सकते हो।
What is potential energy? Potential energy is the energy because of the state or position of any object. Why we have used, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या सब में होती है? हाँ सब में होती है. अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, जब मैं लेट जाऊँगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी, राइट? आपकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है. हम जैसे हमारी पोजीशन चेंज करेंगे, हमारा स्टेट चेंज करेंगे. स्टेट मतलब महाराष्ट्र से गोवा में जाना, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने पोजीशन वर्ड लिखा है यहाँ पर. ठीक है, एक बॉडी के फिक्स्ड पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज potential energy. Why the term gravitational is used? Because in this case the energy you are denoting with respect to gravitational force. यहाँ पर gravitational force के respect में बात कर रहे हो. That is why we are studying under the topic gravitational potential energy. अभी ये मैंने मार्कर होल्ड किया, राइट? अच्छा, आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में दो तरह के टॉपिक पढ़े हैं. वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है विच इज एम जी एच, राइट? काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी में होगी, और पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी किसी भी बॉडी में, इनफैक्ट ये सारे ऑब्जेक्ट्स में होता है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन. सो व्हाट इज एम हियर? एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हो. व्हाट इज जी? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज हाइट? व्हाट इज एच? एंड एच इज द height, height of the object. Height of the object meaning the height to which it is present from the surface of the earth. What is m again here? Mass of the object. इसका kinetic energy के बारे में बात कर रहे हो. What is b? Velocity. अब देख, अब इमेजिन कर लो कि मैंने मार्कर होल्ड किया, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी. इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. आई होप आपने ये लिख लिया होगा. आई एम इरेजिंग दिस. नहीं लिखा था पॉज करके लिख लीजिए. अब जो भी वाटर टैंक यूज करते हो, अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो ये वाटर टैंक टेरेस पे आपको मिल सकता है एक, और दूसरा ऑफकोर्स आपके टॉयलेट के ऊपर भी होता है, राइट? तो ये हमेशा टॉयलेट के ऊपर या फिर टेरेस पे क्यों होता है? ये जमीन के अंदर क्यों नहीं होता है? ये जमीन के अंदर क्यों नहीं होता है? ऐसा कभी आपने नोटिस किया? जमीन के अंदर वाटर टैंक है और यहाँ पे आपका टैप है, यहाँ पे आपका टैप है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आपने कनेक्शन दिया हुआ है. नहीं, हम लोग टैंक ऊपर रखते हैं उससे कनेक्शन, क्योंकि जब आप टैंक एक हाइट पर रखते हो, सपोज आपने ऐसे गेम बहुत देखे होंगे. अब समझो कि है ना, इसमें भी यहाँ तक पानी है और इसमें भी यहाँ तक पानी है, तो इसका पानी इसमें नहीं जाएगा, इसका पानी इसमें आएगा. क्यों? बिकॉज इसका पोटेंशियल एनर्जी इज हाई देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस. आपको कैसे मालूम सर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में एक चीज़ आती है, वो है हाइट. अगर आप ध्यान से देखो तो इसको लैंड कंसिडर करो, तो ज़मीन से लेकर जो इस टैंक की हाइट है वो ज़्यादा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और इस टैंक की हाइट कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि ज़मीन के अंदर के टैंक से टैप में पानी नहीं आता. मैं नहीं आता नहीं बोला, मैंने बोला कि ऐसा हम लोग करते नहीं हैं.
तो सर मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर से आता है, वो ऊपर कैसे आता है? तो ये मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा कि इस पे आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अदरवाइज आई श्योरली एक्सप्लेन दिस इन फ्यू, ऐसे ही जब हम लोग दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे तो। ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हमने डिफरेंस भी समझ लिया कि ये फ्लो पॉसिबल है। अच्छा, ये जो अब फ्लो हो रहा है, मतलब नॉलेज का जो फ्लो हो रहा है मुझसे लेकर आप तक, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज the amount of knowledge I have and the amount of knowledge you have, there is difference, right? इसलिए ये फ्लो पॉसिबल है। कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ती है, ट्रैवल करती है, राइट? कोई भी मटेरियल हाई पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ट्रैवल करता है। अंडरस्टूड? हमें पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ। अब जब हम बोलते हैं कि ये मार्कर नीचे की तरफ गिरना चाहता है, तो ये क्यों गिरना चाहता है? बिकॉज अभी फिलहाल ये ज़मीन से एक हाइट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये नीचे जाएगा और नीचे जाते जाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जब ये ज़मीन पे पहुंच जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, मतलब इनडायरेक्टली मटेरियल वांट द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम ज़ीरो, राइट? यस सर। अब इमेजिन करो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। Now, imagine this is the earth and in one case you are somewhere here, आप जमीन पर हो। So assuming that your potential energy is कितना? पोटेंशियल एनर्जी कितना? अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फॉर्मूला के थ्रू पढ़ेंगे। फॉर्मूला के थ्रू मतलब सर, we have already termed potential energy का फॉर्मूला as mgh, राइट? अब आप यहाँ पर हो, जमीन से लेके आप तक का कुछ तो हाइट है। क्यों हाइट है? क्योंकि आप स्टैंडिंग पोजीशन पर हो, आपके फीट भले यहाँ पर है बट यू आर एट द स्टैंडिंग पोजीशन, सो यू रिक्वायर एनर्जी टू कैरी योर बॉडी। तो मान लो कि जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, एक कंडीशन लो कि आप यहाँ पर हो, फिर अगले कंडीशन में आप यहाँ पर हो, रॉकेट में ट्रैवल कर रहे हो, फिर अगले कंडीशन में आप यहाँ पर हो, फिर अगले कंडीशन में उससे ऊपर। जब आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे तो अर्थ से जो आपका हाइट है वो भी बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये हाइट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है, पहले 10 था, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ। अगर ये हाइट का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये जो ओवरऑल आंसर है वो ज़्यादा आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ते जा रही है और हेंस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, राइट? तो इतना क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, आर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। बट आप अभी इतने हाइट पे चले गए, आप अर्थ से इतना दूर चले गए कि आप जिस पोजीशन पर गए हो वहां पर ग्रेविटी नहीं है। वहां पर क्या नहीं है? ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो, है ना? पॉसिबल है ना, तभी तो रॉकेट और सैटेलाइट्स जा पाते हैं ऑर्बिट में, पॉसिबल है। आप ऐसे हाइट पर चले गए जहां पर ग्रेविटी क्या हो गई? जीरो। अब आप एक बात बताओ, ये हाइट तो मान लो कि बहुत बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, बट ये जो ग्रेविटी है ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब इस फॉर्मूला में m इंटू जी इंटू एच आप इतने ऊपर चले गए कि ये g का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा ये तीनों आपस में, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? जीरो।
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ रहे हैं ना, तो इतना ऊपर चले गए कि ग्रेविटी क्या हो गया, 0 हो गया। और ग्रेविटी तो मल्टीप्लिकेशन में है, ग्रेविटी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो, हमने फॉर्मूला के थ्रू देखा है, बट अब मैं आपको वर्ड्स में बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक ऐसे पॉइंट पे, आप जब जमीन से ऊपर जाते रहते हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते रहती है। आप ये सोचने लगोगे कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। सही सोच रहे हो। बट एक ऐसा जब टाइम आता है कि आप इतने ऊपर चले जाते हो जहां पे ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो गया, वहां पे अचानक से आपके पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। हमने देखा फॉर्मूला के थ्रू। इसीलिए अब मैं आपको एक एनालॉजी ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने नोटिस किया कि देयर आर वेरी फ्यू टीचर्स हु आर एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, कि क्यों ऐसा है। बिकॉज इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू सी दिस टॉपिक, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ऐसा फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी टेकन नेगेटिव। व्हाई? सो लेट्स सी, नंबर लाइन है, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, राइट। हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर बढ़ने लगे तो वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने लगी, और बढ़ते अचानक से एक ऐसा पॉइंट आया कि वो वैल्यू 0 हो गई। मतलब अब हमें ये सोचना है कि 0 होने से पहले हम बढ़ रहे थे, वैल्यू बढ़ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी की बढ़ रही थी। अचानक से ऐसा पॉइंट आया जब वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की 0 हो गई। तो 0 होने से पहले ये जो पोटेंशियल एनर्जी की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज नेगेटिव थी। तो ऐसे नंबर लाइन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। मान लो कि आप यहाँ पर हो, ठीक है। तो अगर आप 4 से 3 पर आए, 4 से 3 पर आए, आपकी वैल्यू बढ़ी या कम हुई? बढ़ी, राइट। 3 इज ग्रेटर देन -4। आपके टीचर ने आपको बताया होगा, मैथ्स टीचर ने, जो नंबर राइट साइड में लिखे होंगे हमेशा राइट साइड की तरफ होंगे वो मैक्सिमम ग्रेटर होंगे। अब आप बोलोगे ये दोनों तो लेफ्ट में लिखे हैं, हम कंपैरिजन ही इन दोनों के बीच में कर रहे हैं ना, तो इन दोनों में से देखो लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा है। -3 राइट में दिख रहा है ना -4 के, तो -3 इज ग्रेटर देन -4, राइट। जब आप -3 से -2 पे आओगे, वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? सर बढ़ी। अगेन -2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द -3। -2 से -1 पे आओगे, वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? सर वैल्यू तो बढ़ रही है। अब -1 से जब आप और बढ़े तो वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। आपकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही थी और वैल्यू अचानक से एक पॉइंट पर आके क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब 0 होने से पहले जितनी आपकी वैल्यूज थी वो सबका साइन क्या था? नेगेटिव था ना। बस वही, यही सेम लॉजिक यहाँ पर हमने अप्लाई किया है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते रहते हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। नो डाउट इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू विल बी 0। इसका मतलब ये है कि 0 होने से पहले जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज थी वो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव थी। इसीलिए आज के बाद इस चैप्टर में जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, विच इज दिस, इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के आगे ये नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी should always come with a negative sign। नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन इसलिए है। अंडरस्टूड?